Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Bright Path Learning. So, first of all, I all very happily welcome to on my channel. And first, this is first video of my channel, and firstly I am starting with the poems of class 12th and 10th. We can study various chapters, topics, and clear so many doubts on this YouTube channel. So may I help you with in a positive way in your study and in your success. So firstly I can start with the chapter My Mother at 66. My Mother at 66, whose poet is कमला दास. आई होप आपने सबने स्कूल में ये वाला चैप्टर रीड कर लिया होगा, है ना. बट कई बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं उसकी स्टोरी में एंड मोस्टली उसकी समरी में कि हाउ वी कैन समराइज दिस and how we can relate this story with our life, because we are not too much young and our mothers and parents were not too much old. So in this poem we can study about an affectionate relationship between the two loved ones, which means the parents and the child. So before starting this we can move to this page, the page number 1. If you can scan this, you may scan this also. Okay, now the My Mother at 66 means My Mother at 66. इससे आपको क्या समझ में आता है कि माई मदर एट 66 से क्या कहना चाहता होगा पोइट, जब मतलब क्या कहना चाह रहा होगा. सो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि पोइट कहना चाह रहा है, आई थिंक ऐसे ही सही है. इससे हम ये कह सकते हैं कि पोइट सेज दैट when my mother at 66, what is my inner feelings and my mother's inner feelings. So just wait. Poem My Mother at 66. My Mother at 66. Firstly we can discuss about the poet. Poet, इसका पोइट कौन है? कमला दास. कमला दास was born in 1934 and died in 2009. Was born in Malabar, Kerala. Malabar एक स्टेट है केरला की. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her work are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhyavikriti. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures, just wait bachcha. Yes, under the Madhyakriti, in addition of the book poetry, she is a sensitive writer who captures complex subtitles of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. उन्होंने इसमें क्लियरली बताया गया है कि उसकी डेथ डेट क्या थी, वो बॉर्न कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किस शहर में हुई थी, है ना, किस मतलब जैसे आप कह सकते हो स्टेट में हुई थी. एंड उसके बाद वो वर्ल्ड की फेमस पोइटेस्ट है, ये भी हमें इससे पता चलता है. एंड मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ओवर we can say that we can know each and everything in a short message through this biography.
सो वो कह रहे हैं कि ये जो माई मदर एट 66 है, ये इसी की ही एग्ज़ाम्पल है। जो माई मदर एट 66 पोइम है, ये इसी की ही एग्ज़ाम्पल कह रहे हैं कि उन्होंने दी हुई है। वेयर इज़, मैं उसको हमें इसमें पढ़ना है, और जो हमने इसमें रीड किया है या पढ़ा है। बैक वॉइस को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज अभी ये थोड़ी सी आवाज़ आएगी, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट क्या करें यार, घर वाले भी देखने पड़ते हैं, अपना काम भी देखना पड़ता है। सो व्हाट आई कैन डू। ओके, come back to our story. So now I can read. We can move to next page. Okay, let's begin with the story of this poem, My Mother at 66. Okay, so उसमें इसी में थी, हम पढ़ेंगे। जस्ट वेट बच्चा, इसमें ना प्रॉब्लम आ रही है। वो थोड़ा सा ऊपर चला गया था मुझसे। यस, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं एंड देन हम रीड करना स्टार्ट करते हैं अपना पोएम। आई होप जितना मैं करा रही हूँ अपनी तरफ से आपको समझ आ गया। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द पोएम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me. Dozen open motored, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. So we can say and we can understand what you can understand what I am reading and what you can understand with this. Especially we can understand that फर्स्ट लाइन है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। वो क्या कह रही है ऑथर? कमला दास बोल रही है कि भाई मैं लास्ट फ्राइडे अपने मतलब पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए निकली थी, ड्राइव कर रही थी। एंड आई वॉज माई मदर बी साइड मी। मैं किसके साथ थी? मैं अपनी मम्मा के साथ थी। मेरी मम्मा मेरे बी साइड बैठी हुई थी, मीन्स मेरे साइड में बैठी हुई थी, बगल में। नेक्स्ट है डोर्स ओपन मोटेड हर फेस लाइक दैट। उनके बोल रही है कि मेरी मम्मा का जो माउथ है वो ओपन हुआ था, उनका फेस जो है वो एशन लाइक दैट, मीन्स जिसको हम बोल देते हैं मुरझाया हुआ, बुझा बुढ़ा सा हो गया है। ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। एंड मैं फील कर रही थी, मैं समझ सकती थी उनका जो फेस है वो पेनफुल था। वो मेरे को बता रहा था, उनका फेस बोल रहा था कि उनके अंदर बहुत सारी पेन छिपी हुई है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। यस, वो कह रही कि यस माई मदर इज़ एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। बट हमको ये सोच को फेंक देना चाहिए और हमें यही सोचना चाहिए कि हम अभी भी जवान हैं, बुढ़े नहीं। Next paragraph stanza number 3 is trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yard। अभी इसमें क्या है वो बोल रही है, जो कमला दास पोइट है, हमें ये तो क्लियर समझ आ गया कि वो अपने मम्मा को गुड बाय करके बाहर जाने वाली थी। एंड अभी वो बता रही है कि ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, जो ट्री थे वो स्प्रिंट कर रहे थे, जो मैरी चिल्ड्रंस थे वो स्पाइलिंग हो रहे थे अपने घर में से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट जब मेरा एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हुआ
एंड स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, जब मैं थोड़ी ही दूर अपने मम्मा से रह गई थी तब क्या हुआ। वो तब की बात हमें बताने वाली है। कहती, अवे लुक्ड अगेन एट हर wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar edge। क्या कह रही थी कि मैं अपने मम्मा के फेस आई लुक्ड अगेन टू हर, मैंने अगेन अपने मम्मा के फेस की ओर देखा एंड मैंने देखा कि उनका जो फेस है वो एकदम ओल्ड हो चुका है, जैसे कि ओल्ड लोगों का होता है, पेल हो चुका है। ठीक है, कैसे, एज अ लेट विंटर मून, जैसे कि एक सर्दियों में मून बहुत देर से निकलता है वैसे। माई चाइल्डहुड फियर, कहती हैं जो मेरा, सॉरी एक लाइन मिस होगी, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एच, एंड मुझे वही ओल्ड फेमिलियर सी थॉट्स मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में आ रही थी। माई चाइल्डहुड फियर, जो कि क्या था, माई चाइल्डहुड फियर। बच्चे ये जो है ना आपका क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता होता है, ये बहुत बार आया भी हुआ है कि ओल्ड फेमिलियर एच जो होता है। ठीक है जी, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, आप एक बार देख लेना कहाँ था। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, उसका क्या था, उसका था ये चाइल्डहुड फियर। ओके, आई बात आपको समझ में, उनका क्या था, ये चाइल्डहुड फियर था। एंड बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, बट वो क्या कह रही थी, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सो एट लास्ट उसको जाना ही पड़ेगा। अब हम बाहर जाने वाले हों, हमारा भी मन नहीं करता कि हम अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं जाएं, बट क्या करें यार, एट द एंड हम यही बोलते हैं। ਆਪਾਂ यही कहने, मैं पंजाबी च दसदी, ਆਪਾਂ यही कहने कि हाँ बई आखिरकार सानू जाना ही पैना इत्थों, है ना। तो मैं हुण तुहानू थोड़ा समझा देनी, कहते कि बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून, मैं अपने मम्मा नू क्या, सी यू सून, ऑल आई सेड दैट सी यू सून अम्मा। इसमें मेल हाईलाइट मेन वर्ड का पॉइंट किस में जाता है, अम्मा में, अम्मा पे। ठीक है, तो ये पूछ लेते होते हैं, मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है वो पूछ लेते हैं। सो प्लीज़ इसको ज़रा माइंड में रखना। ओके, उसके बाद ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उसके बाद क्या हुआ भाई, वो कहती मैं गई, एंड मैं किसके साथ गई, स्माइल के साथ। मैंने स्माइली फेस के साथ अपने मम्मा को बाय बोल दिया, कि फाइनली मैंने बाय बोल दिया। ओके, अगर मेरे पास मेरे 12th के नोट्स हुए तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ, बट अगर नहीं हुए, मेरे को याद है कि मैंने क्या क्या पढ़ा था और मेरी टीचर ने मुझे क्या क्या करवाया था। देखो भाई, +1 +2 10th में तो हम खुद ही, 10th तो माना टीचर्स के सहारे कई बच्चे करते हैं, लेकिन +2 में हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम खुद यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब लर्निंग करते हैं। एंड if I have notes of this poem, then I will definitely help you and share notes with you. Now we can move to the next part, that is think it out, means we have to do some exercise of this poem. First question is, what is the kind of pain and ache that the poet feels, कि poet जो है वो किस तरह की पेन और एच जो है वो फील कर रही थी। आप क्या समझे हो इस पोएम में से, इसके आंसर्स आप मेरे को दोगे, और जो आपके टीचर ने आपको करवाया है उसके हिसाब से आप मेरे को बताओगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। ये मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ कि ये जो स्प्रिंटिंग वाला है, ठीक है, ये वाला आपने मेरे को बताना है कि ये कैसे हुआ, मतलब क्या रीज़न क्या था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई हैज़
मैं आपको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा. Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? Question number 4th, why has the mother been compared to the last winter moons? Question number 5th, what do the parting words of the poet and her smile signify? Okay with that, बच्चा? Okay with that? आप मेरे को बता सकते हो. ओके, ये देखो मैं आपको पूरा पेज शो करवाने लगी हूँ. ये है अभी, ये फर्स्ट पेज था, मीन्स स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज. अदरवाइज फर्स्ट पेज ये वाला था. ओके, आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा. एंड नाउ मैं आपको एक ही चीज़ बोलने वाली हूँ. लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट thank you everyone and please subscribe my channel because I am new on YouTube. This is my university project which is given to me. Thank you.